اب دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی چاہیے، کشتی وہاں پہ تھی نہیں۔ مولا نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ پتہ کرو کہ جو ہے پانی کتنا گہرا ہے، تاکہ اگر کہیں سے پانی کم ہو تو وہاں سے گزر جائے۔ وہ گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا، کہلی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پانی کہاں کتنا گہرا ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ اچھا جاؤ، میں ایک نام بتا رہا ہوں، اس نام کو لے کر کے آواز دو، دریا سے خود جواب مل جائے گا کہ پانی کہاں کتنا گہرا ہے۔ اب یہ گیا، اس نے آواز دیا تو دریا سے عجیب و غریب آواز آنے لگی، یہ ڈر کر کے بھاگ آئے۔ پھر مولا نے خمبر کو بلایا، خمبر اچھا ہے تم جاؤ اور پوچھو آواز دے کر کے کہ اے کنکر ابن چلندی، علی پوچھ رہے ہیں کہ بتا دریا میں پانی کہاں کم ہے، تاکہ علی اس سے گزر جائے۔ خمبر گئے، خمبر نے سوال کیا، آواز لگائی، شاید کنکر اس کا نام تھا، چلندی اس کی ماں کا نام رہا ہوگا۔ آواز دی، اے کنکر ابن چلندی بتا، علی پوچھ رہے ہیں کہ دریا میں پانی کہاں کم ہے تاکہ علی اس سے گزر سکے۔ ایک مرتبہ دریا سے ایک سر بلند ہوا اور کہا کہ خمبر، کوئی اور یہ سوال کرتا تو افسوس نہیں آتا، تم سوال کر رہے ہو کہ بتاؤ، علی پوچھ رہے ہیں کہ پانی کہاں کم ہے۔ 3000 سال ہو گئے ہمیں مرے ہوئے، جو علی 3000 سال پہلے کی بات جانتا ہے وہ علی یہ نہیں جانتا ہوگا کہ پانی آپ اعمال کو تولیں گے۔ اب سنیے، میرا مولا اعمال کو تولے گا، کہا کیسے تولیں گے اعمال کو؟ کہا کہ روز محشر اعمال کی کٹری سب سے اتروائی جائے گی۔ ایک مرتبہ علی پوچھیں گے کہ تم نے نماز پڑھی؟ کہا کہ ہاں ہم نے نماز پڑھی۔ کہا کہ نماز میں کیا پڑھا؟ کہا قرآن پڑھا۔ کہا کہ نماز کہاں پڑھی؟ کہا زمین پہ پڑھی۔ کہا کدھر رک کر کے پڑھا؟ کعبے کی طرف۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ابھی متوجہ نہیں ہے۔ میرا مولا پوچھے گا ہر ایک سے، نماز پڑھی؟ کہاں پڑھی؟ نماز میں کیا پڑھا؟ کہا قرآن۔ کہا کہ کہاں پہ نماز پڑھی؟ کہا کہ زمین پہ۔ کہا کہ رخ کدھر تھا؟ کہا کعبے کی طرف۔ ایک مرتبہ علی پوچھیں گے تمہاری نماز میں کعبہ آ گیا، قرآن آ گیا، زمین آ گئی، اور علی کہاں ہے؟ تمہاری نماز میں کعبہ آ گیا، قرآن آ گیا، زمین آ گئی، مگر علی کہاں ہے؟ جبکہ کعبے سے بھی علی کا افضلیت کا رشتہ ہے، قرآن سے بھی علی کا افضلیت کا رشتہ ہے، زمین سے بھی علی کا افضلیت کا رشتہ ہے۔ اگر کعبہ صدف ہے تو علی گوہر ہے، اگر قرآن کتاب ثابت ہے تو علی کتاب ناطق ہے، اگر زمین غلام ہے تو علی ابو ہے۔ عابد ہو چاہے جتنا بڑا نمازی، وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہ واقعہ اور تاکہ اہمیت پتا چل جائے کہ ولایت علی کی اہمیت کیا ہے۔ آج لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں علی کی ولایت پہ لب کشائی کرتے ہوئے، بولتے ہوئے، جبکہ انکار کی سزا کتنی ہے۔ اگر انسان سمجھ لے تو کبھی بھی علی کی ولایت کے خلاف نہیں جائے گا۔ روایت ہے کہ مولا کائنات جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، اور یہ مشہور روایت ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنا بھی ہو، اگر نہیں سنا ہے تو پہلی مرتبہ ہمارے منہ سے یہ نذرانہ آپ تک پیش کر رہا ہوں۔
जंग सिफीन से अली वापस आ गए रोका नहीं, जिसके नतीजे में उन्होंने उस इर्तिकाब को किया और जुर्म को अंजाम दिया कि आज तक जमाना याद करता है। 1400 साल हो गए करबला की तारीख को, मगर आज भी जब नाम हुसैन आता है तो आंखों में अश्क आ जाता है। अरबाब अदा इधर किसी ने या हुसैन कहा, आंखें नम हो गई। जैसे ही हुसैन का नाम आया, वो आंखें जो अब तक अली के फजाइल से मचल रही थी, फौरन हुसैन के गम का आंसू हुआ। अरबाब अज़ा रो लीजिए, पहली मुहर्रम से उलमा ज़ाकिरीन कह रहे बस 9 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन। अब ज़ाकिर कह रहे बस 1 दिन बचे हैं हुसैन पे रोने के लिए। अरबाब अज़ा मुसाइब का दौर है। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे तारीख याम अज़ा की बढ़ती है, 6 तारीख के बाद फजाइल से इंसान के रुझान धीरे धीरे हट जाते हैं। चाहता है हर अज़ादार की ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुसाइब, और ज़ाकिर को भी ख्याल रखना चाहिए कि मुसाइब में कमी न करना चाहिए, मुसाइब पढ़ा जाए, ताकि बीबी जो फकीर से आई है वो किस लिए आई है। अरबाब अज़ा धूप बहुत तेज है, बड़ी शदीद धूप है। आप दूसरी मजलिस गालिबन अंजाम पर सुन रहे हैं। क्या हुआ, पहली मजलिस खत्म, शरबत का इंतजाम था, शरबत पिया, कूलर में ठंडी हवा लिया, फर्श पे बैठ गए। थोड़ी देर कोई गया होगा, घर पे लेटा होगा, कमर सीधी कर ली होगी, फिर आगे होंगे। आपके लिए इंतजाम है, अरबाब अज़ा शरबत है, पानी है, खुदा सलामत रखे। पहली मुहर्रम से अज़ादारों के लिए इंतजाम है। मगर मैं कहूँगा कि शरबत पीते वक्त, आराम करते वक्त ये सोचिएगा कि आप तो आराम कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, मगर हाय हुसैन की माँ फातिमा, एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस, एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस, फातिमा बकी में आराम करने के लिए नहीं जाती है। कैसे जाए, कैसे जाए, जिस माँ का पूरा घर करबला में उजड़ गया। अरबाब अज़ा रवायतें बताती है कि खुदा ने फरिश्ते को मुअय्यन कर रखा है कि जब भी मजलिस हो सबसे पहले जाए रसूल खुदा की मज़ार पे और जा करके इत्तला दे। वो फरिश्ता आता है रसूल की कब्र पे और आकर के कहता है, या रसूल अल्लाह, फला के घर मजलिस हो रही है। रसूल खुदा भाग करके उस फला को कहते हैं, मैंने कितनी मर्तबा कहा कि मुझसे कहने से पहले मेरी बेटी फातिमा की लहर पे जाया कर। वो फरिश्ता हाथ जोड़ के कहता है, या रसूल अल्लाह, अरे मैं गया था, लहर खाली थी। फातिमा जब फर्श बिछता है, सभी बीवी आकर के बैठ जाती है। हर माँ अपने बच्चे को चाहती है, हर माँ का बच्चा जो है प्यारा होता है, मगर अरबाब अज़ा जरा सोचिए, वो माँ अपने बच्चे को कितना चाहती होगी जिसका बेटा अली अकबर जैसा हो, जिसका बेटा हमशक्ल पैगंबर हो, जिसका बेटा खुल्क में हसन हो, शुजाअत में हुसैन हो, नाम में अली हो, सिर में फातिमा हो और शक्ल सूरत में मोहम्मद हो। अरे जाने वो कौन, वो अली अकबर। इसीलिए जब अली अकबर का मुसाहिब पढ़ा जाता है और कोई आंख में आंसू ना आए, कोई रोए ना, तो एक मर्दों में लैला कहती है, बचा है तुम नहीं रो रहे हो, बचा है तुम नहीं रो रहे हो, क्योंकि तुमने मेरे अकबर के रुखसारों को नहीं देखा, तुमने मेरे अकबर की पेशानी को नहीं देखा, तुमने मेरे अकबर के आंखों को नहीं देखा, तुमने मेरे अकबर के लोटों को नहीं देखा, तुमने मेरे अकबर के जुल्फों को नहीं देखा। अरबाब अज़ा जनाब अली अकबर हुसैन को भी बड़े प्यारे थे, बचपना है,
जनाब अली अकबर का रवायत बताती है कि 3 बरस का सिंधा होगा, 3-4 बरस का असहाब बैठे हुए थे। जनाब अली अकबर खेलते हुए आए, आकर के हुसैन के आगोश में बैठ गए। एक मर्तबा अकबर ने फरमाइश किया, बाबा अंगूर खाने का दिन जा रहा है। एक मर्तबा हुसैन ने फिजा में हाथ बढ़ाया, जन्नत से अंगूर का गोशा तोड़ा, अली अकबर को दे दिया। अली अकबर खाने लगे, हुसैन रोने लगे। असहाब ने सवाल किया, मौला अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा अंगूर खा रहा है, जबकि मौसम भी नहीं है। खुदा ने आपको ये ताकत और कुदरत दिया है, ये इज्जत और शरफ दिया है कि आपने जन्नत से अंगूर मंगा करके बेटे को दे दिया। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं यही तो रोना है, आज बेटे ने अंगूर मांगा, हुसैन ने दे दिया। एक वक्त बेटा तो खतरे आप मांगेगा। हुसैन को जनाब अली अकबर से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी। बल्कि जनाब अली अकबर हर एक के दिल अजीज थे, हर एक चाहती थी, चाहे वो ज़ैनब हो, चाहे उम्मे कुलसूम हो, चाहे वो बहनें हो, हर कोई अकबर से मोहब्बत करता था। रवायत है कि एक मर्तबा करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में बस खत्म हो गई मजलिस। अगर आप 2 कतरे आंसू आपके आंखों से बह गए, यही महसल है मजलिस का। कहा कि एक मर्तबा करबला में इमाम हुसैन के हरम में मजलिस हो रही थी। आयतुल्लाह मोहम्मद मेहदी बहरुल मजलिस को खिताब फरमा रहे थे और खुद वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि क्या मुसाहिब पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कि एक मर्तबा मेरे ज़हन में आया हुसैन का हरम है, अकबर का मुसाहिब पढ़ूंगा तो बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी दिक्कत होगी। एक मर्तबा अकबर का मुसाहिब शुरू कर दिया, इन्होंने पढ़ना शुरू किया। अकबर रुखसत हुए, मैदान क़िताल की तरफ गए। एक मर्तबा इनकी ज़बान से निकला, अकबर के सीने में बर्छी लगी। एक मर्तबा जैसे ही पढ़ा, खातिब दौड़े दौड़े आया, कहा बैरुल उलूम मिंबर से उतर जाओ। डांट करके कहते हैं, क्या मैंने गलत पढ़ा है, क्या अकबर के सीने में पर्ची नहीं लगी थी? कहा कि अरे मैं नहीं जानता कि पर्ची लगी थी कि नहीं, मगर जैसे ही तुमने कहा अकबर के सीने में पर्ची लगी, हुसैन की जरी से खून बहने लगा। खैर मिंबर से उतरे, गए घर में आराम किया, सोच रहे थे कितने में ख्वाब में खुद मौला हुसैन आ गए। का मौला क्या मैंने गलत पढ़ा, क्या अकबर के सीने में पर्ची नहीं लगी थी? एक मर्द हुसैन ने कहा कि हाँ लगी थी। कहा कि फिर आपके जरी से ताजा खून क्यों? कहा कि अरे तुम नहीं समझे, उसी वक्त शाम से मेरी बहन ज़ैनब आई थी, तब से वो बार बार पूछ रही है, ए भैया अरे क्या अकबर को मैंने ऐसे के लिए पाला? ए भैया मेरे अकबर के सीने में लहजा क्यों मारा? ए भैया अरे मेरे अकबर ने किसी जब
مدد